بخش کے جو دو تختے ہیں ان کے مابین بھی ایک عمارت واقع ہے۔ یہ عمارت ایک سنکن روم کی طرح ہے اور ڈپریشن میں بنائی گئی ہے۔ یہ تمام کے تمام سفید سنگ مرمر سے بنی ہے۔ اس عمارت کو عام طور پر چینی خانہ یا ساون بادوں کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن مغلوں کے دور میں اس کا ایک اور نام بھی تھا اور وہ تھا دیپ مالا کا، یعنی چراغوں کا ایک ہار۔ وہ اسے اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس میں بہت سے چراغ جلائے جاتے تھے۔ ان کی تفصیل میں آپ کو اس پروگرام میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس عمارت کا جغرافیہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس عمارت کا وہ حصہ ہے جو آپ میرے دائیں جانب دیکھ رہے ہیں۔ اسے ایک ڈپریشن میں بنایا گیا ہے اور جو اس شالیمار باغ کا بڑا تالاب حیات بخش پہ واقع ہے وہ اس کے عین اوپر ہے۔ اس حصہ کے تین اطراف پہ آپ جھروکوں کی بہت سی قطاریں دیکھ رہے ہیں۔ اس ایریا کے مشرق اور مغرب کی جانب اوپر دو ہوا محل بنے ہیں، ان کی ڈیٹیل ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس جانب یہ ایک چھوٹا سا پل ہے، اس کے اس جانب بھی 5 اوپننگز ہیں اور اس جانب بھی 5 اوپننگز۔ اوپر اس کے ایک چھت ہے اور اوپر کا راستہ ایک گینگ وے کا کام کرتا تھا۔ اس حصہ میں جو پانی بھر جاتا وہ 2 ذریعوں سے اس حصہ میں داخل ہوتا، ایک یہاں آبشار بنتی اور ایک نیچے جو آپ سوراخ دیکھ رہے ہیں اس سے پانی نکلتا۔ اسی عمارت یعنی ساون بادوں کا ایک حصہ وہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ یہ ایک شیلو سا پونڈ ہے، اس میں کچھ فوارے ہیں اور اوورآل اس کا اگر ڈیزائن دیکھیں تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس باغ کا بڑا تالاب۔ اس حوض کے اختتام پہ یعنی شمال کی جانب ایک چھوٹی سی آبشار بنی ہے۔ اب آتے ہیں ہم ساون بادوں کی ڈیٹیلز کی طرف۔ ساون بادوں کے شمال کی جانب ایک برآمدہ نما عمارت ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کے 4 مکمل ستون ایک جانب اور 4 مکمل ستون دوسری جانب ہیں، جبکہ آخری ستون ہر 2 طرف آدھے آدھے ہیں۔ ساون بادوں کے بیچ میں جہاں اس وقت میں کھڑا ہوں یہ دراصل ساون بادوں کا تالاب ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پشت پر میری دائیں جانب اور میری بائیں جانب آپ کو جھروکوں کی بہت سی قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں۔ یہ جھروکے 4 منازل پہ مشتمل ہیں، یعنی 1 2 3 اور 4۔ 17 جھروکے اس طرف ہیں، یعنی ہر لائن میں 17 جھروکے اس جانب مغربی سمت۔ اسی طرح مشرقی سمت میں بھی ہر لائن میں 17 جھروکے ہیں، جبکہ میری پشت پہ جو قطاریں ہیں ہر قطار میں 21 جھروکے ہیں۔ لہٰذا ان کو اگر جمع کیا جائے تو ان کی کل تعداد 220 بنتی ہے۔ صحن میں جو پانی کی آمد کا انتظام تھا وہ اس طرح تھا کہ نیچے آپ کو 4 بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے ہیں۔ حیات بخش پہ جو تالاب ہے وہی ان سوراخوں سے اس تالاب کو پانی سپلائی کرتا۔ دوسرا ذریعہ اگر آپ ان جھروکوں کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک پروجیکشن نظر آ رہی ہے۔ اس پروجیکشن کے اوپر آپ کو ایک چھوٹی سی سلٹ یا دراڑ نظر آتی ہے، اور جب تالاب بھر جاتا تھا جو تالاب حیات بخش پہ واقع ہے تو یہاں سے پانی ایک آبشار کی صورت میں اس تالاب میں گرتا۔ ان جھروکوں میں اس وقت چراغ جلائے جاتے، ہر ایک جھروکے میں ایک چراغ ہوتا اور پانی ایک چادر کی مانند اس تالاب میں گرتا۔ ایک عام دیکھنے والے کے لیے یہ تمام جھروکے ایک سے ہی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں 2 قسم کے جھروکے ہیں۔ ایک جھروکے وہ ہیں جن کے آگے اس قسم کی آرچ دی گئی ہے۔ یہ ایک ملٹی فائل چھوٹی سی آرچ ہے، 3 فائل ادھر ہیں 3 ادھر ہیں، ایک اوگی آرچ اوپر ہے۔ پھر یہ دائیں جانب جو شولڈرز ہیں یہ کافی اندر کو نکلے ہوئے ہیں۔ یہ تمام کی تمام قطار ایسے ہی آرچز پر مبنی ہے، جبکہ اگر آپ نیچے آئیں اور اس کو دیکھیں تو یہاں جو ایئرز ہیں یا جو پروجیکشنز ہیں وہ چھوٹی ہیں اور اوپر کا حصہ جو ہے وہ گولائی دار ہے، اور اس میں یہاں جو ملٹی فائل موٹیوز ہیں وہ 1 2 3 4 5 6 7 ہیں، یعنی 7 اس جانب اور 7 ہی اس جانب، جبکہ دوسرے میں صرف 3 اس جانب اور 3 اس جانب ہیں۔ ایک اور قابل غور چیز یہ ہے کہ ان کی اگر چوڑائی آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 9 انچ کے قریب ہے، اور اس طرح ان کی گہرائی بھی 9 انچ ہی ہے، جبکہ اس کی جو ہائٹ یا بلندی ہے وہ 18 انچ کے قریب ہے۔ یہ تالاب شرقاً غرباً تقریباً 25 فٹ اور شمالاً جنوباً 21 فٹ ہے۔ درمیان کا جو حصہ ہے اس کی گہرائی تقریباً 1 فٹ کے برابر ہے، اور کونے میں آپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 2 ٹائپ کی کنسٹرکشن نظر آتی ہے۔ ایک تو چھوٹی سی سائما ریکٹا مولڈنگ ہے
और उसके ऊपर एक बैंड चलता है। ये तमाम हिस्सा इस तालाब का दरमियानी हिस्सा बनाता है। ये यूँ कहिए कि ये जो बॉर्डर है ये एक सीढ़ी की मानंद है। अब अगर आप इस तालाब के दरमियान में आए तो आपको फव्वारों की 3 कतारें नज़र आती हैं। 2 कतारों में 2-2 फव्वारे और बीच की कतार में सिर्फ एक फव्वारा है। इस फव्वारे की डिटेल इस तरह है कि तमाम का तमाम यूनिट संगमरमर के एक ही टुकड़े से बनाया गया है, लेकिन इसमें 4 पोर्शंस नुमायाँ हैं। एक इसकी बेस है, फिर बेस से लेकर इसकी नेक तक एक हिस्सा है जिसमें बे लीफ के मोटिव्स जो हैं वो नीचे की जानिब जा रहे हैं। फिर इस गर्दन के ऊपर, जिसे टेक्निकली हम ट्रेचेरियन कहेंगे, इसके ऊपर आए तो हमें एक बड मोटिव या कली की जानिब मोटिव बना नज़र आता है। इस पर जो पत्ते हैं वो ऊपर की जानिब जा रहे हैं। 5 के 5 फव्वारे इसी किस्म की डेकोरेशन पर मुश्तमिल हैं। ये तो हमने देख लिया कि इस तालाब में पानी 3 ज़राए से आता था। अब देखना ये है कि इनेकास का क्या सिलसिला था और पानी बाहर कैसे जाता। एक सूरत या एक जो डिज़ाइन था पानी के खारिज का वो तो ये था कि इस सुराख से पानी इस पुल के नीचे से होता हुआ बाहर के तालाब में गिर जाता। दूसरा ज़रिया ये था कि इस सुराख को बंद कर दिया जाता। उस सूरत में यह तालाब यहाँ तक भर जाता और यहाँ तक भरने के बाद इस जो यहाँ जो आप सिल देख रहे हैं इसके नीचे एक तवील स्लिट है और आप इसका इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको आर पार नज़र आ रहा है। ये पानी यहाँ से होता हुआ इस पुल के नीचे से गुजरता हुआ बाहर आबशार की सूरत में गिरता और छोटे तालाब में जमा होता। वहाँ भी एक छोटी सी सावन भादो है जो हम उस तरफ चल के देखते हैं। आइए आप ये भी देख लें कि जो पानी इस पुल के नीचे से या बरामदे के नीचे से गुजरता था वो बाहर क्या शक्ल इख्तियार करता था। वो पानी इस छोटे से अपर्चर या जैसे आप झरी भी कह सकते हैं यहाँ से निकलता और इस प्लेट के साथ एक चादर बनाते हुए आबशार की सूरत में नीचे गिरता। अब अगर आप फर्दर नीचे आएँ तो यहाँ भी आपको सावन भादों की मानंद ही बने हुए छोटे छोटे झरोकों की एक तवील कतार नज़र आती है। इनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि दाएं और बाएं जानब साथ साथ ब्लाइंड झरोके हैं। यह होने का कि उनमें चिराग नहीं रखे जा सकते थे, जबकि बीच में 21 झरोके ऐसे हैं जिनमें चिराग रखे जा सकते थे और यहाँ से ही पानी की चादर इनके सामने से गिरती और इस शैलो तालाब में चली जाती। सावन भादों के बाहर की जानब जो तालाब है वो सावन भादों के अपने तालाब से भी कम गहरा है। इसे हम टेक्निकली एक शैलो पॉन्ड कहेंगे, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी दिलचस्प बातें हैं। मिसाल के तौर पर इतने शैलो होने के बावजूद इसके 3 लेवल्स हैं। एक लेवल ये है, फिर दूसरा लेवल ये है जो तकरीबन 1 इंच बुलंद है, फिर एक तीसरा लेवल है जो तकरीबन 1.5 इंच बुलंद है। ये 3 लेवल्स में इस तालाब को बांट दिया गया है। तालाब का जो तीसरा लेवल है वहाँ हमें एक बॉर्डर नज़र आता है। ये बॉर्डर जो है 2 यूनिट्स पर मबनी है। एक यूनिट तो वो है जो हमें यहाँ एक महराब की सूरत में नज़र आ रहा है। ये छोटी छोटी मल्टीफाइल आर्चेस पर मबनी था जो किसी हद तक आप यहाँ देख सकते हैं। फिर नीचे की जानब अगर आप आते हैं तो हमें 3 फॉइल्स पर मबनी एक और कंस्ट्रक्शन नज़र आती है। इसे हम ट्रिफॉइल डिज़ाइन भी कह सकते हैं। इस तालाब का तमाम बॉर्डर इन्हीं 2 मोटिव्स पर मबनी है। पानी के खरूज का सिलसिला कुछ इस तरह था कि यहाँ आपको एक अपर्चर नज़र आ रहा है, इसी तरह का एक अपर्चर उस जानब है। पानी यहाँ से ज़मीन दोज होता और फिर जो नहर जा रही है यहाँ एक सुराख है, यहाँ से उबल कर बाहर निकलता। बसूरत दीगर जब इन अपर्चर्स को बंद कर दिया जाता तो ये तालाब पानी से भर जाता और फिर आप यहाँ एक और अपर्चर देख रहे हैं। यहाँ से पानी गुजर कर जो बाहर की जानब जो एक छोटी आबशार बनी है उसमें गिरता और नहर में चला जाता। इसी पॉन्ड के बीच में बिल्कुल सावन भादों की पॉन्ड की तरह ही 5 फव्वारे हैं जो 3 कतारों में खड़े हैं। फ़र्क ये है कि वो फव्वारे ऊंचे थे, ये फव्वारे डिप्रेस्ड हैं। वो बेलीफ मोटिव पे मबनी थे, जबकि इनका अगर हम प्लान देखें तो इनका प्लान जो है वो सनफ्लावर से काफ़ी हद तक मुशाबत रखता है। तालाब की शुमाली जानब जो छोटी सी आबशार है वो नहर के एक सिरे से शुरू होती है और दूसरे सिरे तक चली जाती है। ये ज़मीन के साथ तकरीबन 45 डिग्रीज़ का एंगल बनाती है, तो इसकी कुल डेप्थ जो है तकरीबन 1 फुट के करीब होगी। तमाम की तमाम आबशार को इस तरह के शेवरन मोटिव्स में डिवाइड कर दिया गया है। ये इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि पानी हर इस नुक्कड़ पे लगता और उछलता और फिर उछलने के बाद नीचे गिरता।
इसी कंस्ट्रक्शन को हम शेवरन डिज़ाइन या जिग-जैग मोटिव कहते हैं। सावन बादों की शुमाल की जानब जो बरामदा है, आइए अब उसकी डिटेल्स भी देखते हैं। अव्वल तो ये कि तमाम का तमाम बरामदा नहायत खालस और पाकीज़ा सफ़ेद संग मरमर से बना है। इसके दोनों जानब यानी शुमाली जानब और जनूबी जानब 5-5 आर्चेज़ हैं। ये आर्चेज़ 4 मुकम्मल कॉलम्स और 2-2 निस्फ कॉलम्स पर खड़ी हैं। इन कॉलम्स की डिटेल कुछ इस तरह है कि अगर हम नीचे से शुरू हों तो सबसे नीचे हमें इन कॉलम्स की बेस नज़र आती है। ये यहाँ बहुत से मोटिव्स जिनमें साइमा रेक्टा और बैंड्स वाक़े हैं उन पर मबनी है। इसके ऊपर अगर हम यहाँ देखें तो हमें पीकॉक टेल की डेकोरेशन नज़र आती है। इसे हम डव टेल भी कह सकते हैं। इसके बीच में हमें फ्लोरल मोटिव्स नज़र आते हैं जो 3-3 फूलों पर मबनी हैं। जबकि इस डेकोरेशन के ऊपर आएँ और इस कॉलर्स पे देखें तो यहाँ भी हमें मल्टीफाइल छोटी छोटी पत्तियाँ बनी नज़र आती हैं। यहाँ से ऊपर कॉलम की शेफ्ट शुरू होती है और इसके 12 पहलू हैं, यानी हर कॉलम 12 पहलुओं पर मबनी है। ऊपर आकर हमें इस कॉलम का कॉलर मिलता है। कॉलर से ये कॉलम बाहर की जानब निकलता है और छोटे छोटे पेंडेंटिव से इसका साइज ऊपर आकर एक बार फिर मुरब्बा बना दिया गया है। यहाँ से एक वर्टिकल पोर्शन शुरू होता है। अगर आप इन आर्चेस को देखें तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम्स में सेट हैं। यहाँ भी हमें छोटे से डेकोरेटिव मोटिव नज़र आते हैं जो नहायत ही एक मिनिएचर वॉल्यूट पर मबनी है। आर्चेस में सबसे टॉप पे या एपेक्स पे हमें एक ओगी आर्च नज़र आती है। हर 2 जानब 3 फॉल्स हैं और नीचे आकर इस आर्च का शोल्डर है। यही स्कीम तमाम आर्चेस पे दोहरा दी गई है। अंदर भी यही स्कीम है और बाहर भी यही स्कीम। इस बरामदा में दाखिल होने के लिए 2 रास्ते हैं और दोनों के दोनों ही फैज बख्श के तख्ता से हैं। हम यहाँ से दाखिल होते हैं, फिर राइट एंगल पे मुड़ के और 2-3 छोटी सी सीढ़ियाँ चढ़कर इस लेवल पर आते हैं और ये दहलीज गुजरने के बाद हम इस बरामदा के अंदर आ जाते हैं। इस बरामदा को मैं एक मल्टीपर्पज़ बरामदा समझता हूँ। मल्टीपर्पज़ इस तरह कि इसके बहुत से मकासद थे। अव्वल ये कि ये एक पुल का काम करता और सावन भादों के तालाब में जो पानी जमा होता वो इसी के नीचे से गुजर कर बाहर के तालाब में गुजरता। इसका दूसरा काम ये बरामदा या शेल्टर या साया मुहैया करना था। और इसका तीसरा काम अगर हम देखें तो ये ऊपर एक ब्रिज की सूरत में है और सावन भादों के दाएं बाएं अंदर जो 2 हवा महल हैं उनको आपस में मिलाने का काम भी करता। लिहाजा ना सिर्फ ये यहाँ ये पुल है, बरामदा है, बल्कि ऊपर की जानिब भी एक और पुल है। कंस्ट्रक्शन के साथ साथ न जाने आपने गौर किया कि नहीं, एक और चीज़ भी बड़ी अहमियत की हामिल है और वो है ऑड नंबर्स का इस्तेमाल, यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर्स। मिसाल के तौर पर इस लाइन में अगर आप देखें तो इन छोटे छोटे ताकतों की तादाद 17 बनती है एक लाइन में। उस जानब ये 21 है, इस जानब फिर 17 है। फिर ये कि ये सिर्फ 3 जानब हैं। इसी तरह अगर इन फवारों को लें तो ये भी तादाद में 5 हैं। बाहर के पाउंड का लेवल देखें तो उसके 3 लेवल्स हैं और फवारों की तादाद 7 है। इन आर्चेस को देखें तो इनकी तादाद 5 है और कॉलम्स की तादाद 7। बाहर जो एक छोटी सावन बादों हैं उसमें बीच के तख्तों की तादाद 21 है और दाएं और बाएं जानब जो ब्लाइंड आर्चेस हैं उनकी तादाद 7-7 है। ये एक दिलचस्प पहलू है और यकीनन आपके लिए भी इसमें बहुत से दिलचस्पी के पहलू छुपे हैं। कभी आप आएँ तो इन पहलुओं पर भी गौर करें और देखें कि इनकी अहमियत क्या है। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।